હાઇપરટેન્શન અને હાઇપરટેન્શનના કોમ્પ્લિકેશન્સથી કરોડો લોકો પીડાય છે. અર્બન એરિયાઝમાં 30% અને રૂરલ એરિયાઝમાં ગ્રામીણ ભારતમાં પણ 20-25% લોકોને હાઇપરટેન્શન થઈ ગયું છે. એનો પરમાનન્ટ સોલ્યુશન નથી કોઈ પણ પેથીમાં પૂરી દુનિયામાં, પણ યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ અને નેચરોપેથી, પંચકર્મ, ષટકર્માથી, સામાન્ય આહાર વિહારથી અમને આ હાઇપરટેન્શન સારું કર્યું છે. એના માટે આજ 4-5 તો તમને નેચરોપેથીની વિધિઓ બતાવીશ. વોટર થેરાપી અને મડ થેરાપી. વોટર થેરાપીમાં આ સ્પાઇનલ કોડ પર પાછળથી આમ એને એ પાણી એના ધાર આપે, એને સ્પાઇન બાથ કહેવામાં આવે. એ આમ અને ફૂટ બાથ એ ભાઈ જે બેસેલા છે ને અહીંયા, આ સુભાષ શર્મા અને અશોક શર્મા બંને ભાઈઓને આમ કોઈ હાઇપરટેન્શન નહીં, પણ એને આર્થરાઇટિસ એ સારું કરી લીધું અને અહીંયા બેસાડી દીધા એ બંનેને. હા તો વોટર થેરાપી છે. અને એ ભાઈને અરુણકુમાર સિંહને જેનેટિક બીપી હતું, એને પાછળથી એને સ્પાઇનમાં મસાજ આપીએ છીએ, આઈસની મસાજ. એનાથી તરત એકદમ બીપી કેટલું જ વધેલું તરત સારું થઈ જાય. અને મડ થેરાપી, આ મિટ્ટીની પટ્ટી છે ને માથા ઉપર અને પેટ ઉપર મૂકવામાં આવે અને એમાં શ્વાસો પર ધ્યાન કરે, તરત બીપી સારું થઈ જાય. તો આ તો વોટર થેરાપી અને મડ થેરાપી થઈ. અને એક છે આ આહાર થેરાપીમાં, ફૂડ થેરાપીમાં દહીં કે છાશમાં સ્ટ્રોબેરી નાખીને અને એનો શેક બનાવી નાખો અને એમાં પછી હની નાખીને અને એને પીવાનું. એનાથી બીપી સારું થાય. દૂધીથી બીપી સારું થાય, કદ્દુથી બીપી સારું થાય. પાણી વધારે પીઓ, સોપનું પાણી પીઓ, મેદાક્વાસ પીઓ, એનાથી બીપી સારું થાય. આ મુક્તાવટી અને બીપી ગ્રીટ, ભૂખ્યા પેટે મુક્તાવટી અને જેને બહુ જ હોય ને બીપી ગ્રીટ જમ્યા પછી આપવામાં આવે, એનાથી બીપી સારું થઈ જાય. અને બહુ જ બીપી વધેલો હોય તો પછી એને અમે મેધાવટી પણ આપીએ. એના જેને બહુ સ્ટ્રેસ વધેલું હોય ને તો અમે આ મેધાવટી આપીએ છીએ, એનાથી બીપી સારું થાય. પછી એનાથી કોઈને પેરાલાઇસિસ થઈ ગયું તો ન્યુરોગ્રીટ અને ઇમ્યુનોગ્રીટ, ન્યુરોગ્રીટ ગોલ્ડ અને ઇમ્યુનોગ્રીટ ગોલ્ડ આ આપીએ છીએ. એનાથી બીપી અને પેરાલાઇસિસ સારું થઈ જાય. મસ્તિષ્ક પર એની આડઅસર ગેરઅસર થઈ ગઈ હોય ને તો એના માટે મેધાવટી. આ નાનકડી વાતો છે પણ એનો અસર બહુ મોટો છે. અને હાર્ટ ઉપર અસર આવી ગયો હોય ને તો અમે એને આમ સામાન્ય રૂપે તો બીપી માટે સારસ્વત અરિષ્ટ, અશ્વગંધારિષ્ટ આપીએ, ને તો હાર્ટ ઉપર અસર આવે તો કાર્ડિયોગ્રીટ, ભૂખ્યા પેટે અને હૃદયામૃત જમ્યા પછી આ આપીએ છીએ. અને અર્જુનારિષ્ટ અને આ ગોધન અર્ક તો બધા જ રોગોમાં ડિટોક્સ કરવા માટે અર્જુનની છાલ, દાલચીની, કોલેસ્ટ્રોલ વધેલું તો લિપિડોમ પણ આપીએ છીએ. આ નાનકડા ઉપાયો છે. અને આ ઉપાયો કરીને હાઇપરટેન્શનથી માંડીને આજે હાઇપરટેન્શનની તો વાત થશે જ થશે, એના સાથે સાથે બાકી બધા રોગો પણ મટે છે. ચલો ભાઈ, सब अनुलोम विलोम करो. पहले सबसे पहले अरुण सिंह को ही पूछते हैं, अरुण सिंह कब से था हाइपरटेंशन? 4 साल से. कहाँ से, किससे आया था, माँ से कि पिता से? ग्रैंडफादर को भी था और पिताजी को भी था. ओ, 3 पीढ़ियों थी, 3 पीढ़ियों से ये बीपी था, 3 पीढ़ी से. ओह, फिर हमने सुबह हम 2.5 घंटा अनुलोम विलोम, कपाल भारती और शीतकालीन ब्राह्मी ये सब किया. और उसके बाद मुक्तावटी मैंने खाया खाली पेट में. वो खाया, उसके बाद मेरा कंट्रोल होने लगा. फिर कंट्रोल हो गया. फिर मैं आपके यहाँ आया कि और हम अच्छी तरीक़ा से जानने और लोगों में कम से कम हम जागृत करें कि नहीं, प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से और इससे बाबा के शरण में जाने से जेनेटिक बीपी ख़त्म हो जाएगा. और मेरा स्पाइन दर्द था कि हम बाइक पर चढ़ते थे तो चला नहीं पाते थे बाइक को. हाँ. तो एक जगह कहीं हम 2 घंटा बैठ नहीं पाते थे, पूरा पीठ में नीचे. तो आपके बर्फ से सिकाई कर रहे थे? हाँ, नीचे से कमर से लेकर गर्दन तक दर्द रहता था.
यहाँ आपके यहाँ योगग्राम में 3 दिन से हमने लिया थेरेपी लिया, 3 दिन से वो मालिश हुआ और वो कटी बस्ती और पृष्ठ बस्ती वो सब जी, करते हैं। वो अथी से उससे गरम गरम तेल डालते हैं। तेल से मालिश हुआ उससे, और उसके बाद दर्द मेरा एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक ही कर लिया। हाँ, ठीक हो गया कम। ये चक्रवर्ती भी, अनूप कुमार चक्रवर्ती भी चक्कर में पड़ गया था। क्या क्या चक्कर में पड़ा? मेरा 2005 साल में शुगर हुआ था बहुत ज़्यादा। पीपी में 500 का आसपास में था और फास्टिंग में 300 का आसपास में था। तो 2006 साल में मैं भुवनेश्वर में एक शिविर हुआ था महाराज जी का, तो मैंने उससे प्रेरणा ली और मैंने पूरा प्राणायाम किया और 2 ही महीने में शुगर ठीक कर लिया। तब से मैंने प्राणायाम ज़िंदगी में कभी छोड़ा नहीं और आज तक मेरा शुगर कभी बढ़ा नहीं। 2006 से? 2006 से। ए राम। मेरा रिपोर्ट अपने जोग इन द सिनर्जी ऑफ मेडिकल साइंस, जो विज्ञान की कसौटी पर जोग जो है, उसमें भी आपने डाला अच्छा, था। बहुत पुराना है। बहुत पुराना। मैंने और तुम्हारा पेट में क्या हुआ था? पेट में मेरा उस टाइम में जो एलोपैथिक दवा 1-2 महीना खाया था, उससे मेरा कॉन्स्टिपेशन जो क्रिएट हुआ, 16 साल से वो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ। मेरे को दिव्य चूर्ण और शुद्धि चूर्ण से पैखाना करना पड़ता। लेकिन मैंने जब से अपने इंटीग्रेटेड जोग दिखाए हैं, मैंने इंटीग्रेटेड जोग से 5-6 आसन का साथ में कपालभाति करने से मेरा इतना दिन का दवा छूट गया। मेरा सुबह होते ही टॉयलेट हो जाता है। तो पेट गड़बड़, कॉन्स्टिपेशन, फिर फैटी लीवर, बच गए। 2005 में मेरे को एल बन गए थे बाबा जी, पूरा एल बन टाइप गया में था। हो गए थे। कुबड़ा बाय, धनुर्वात बोलते और हैं। मम्मी से आई थी, मेरा मम्मी को हुआ था ये। मंडूकासन का। 5 भाई को जेनेटिक हो गया है। तो अभी 3 भाई से यहाँ पर आए हुए हैं। 5 भाइयों को है जी। अरे राम राम राम। तो 3 भाई से यहाँ पर आया हूँ बाबा जी। और एक भाई, छोटे भाई जो हैं, चलना फिरना उनका मुश्किल है, बैसाखी में लेके आया हूँ उसको। और हम लोग को तो अभी 90% बाबा जी ठीक हो गया है। और 2005 में राउरकेला में बाबा जी आए थे, वहीं पर 13 नंबर सेक्टर में एरोड्रम में मुलाकात हुआ था बाबा जी से। तब से अब हाँ, बाबा जी बोले थे कि थोड़ा देर होगा बेटा, लेकिन ठीक हो जाएगा। तो उसी टाइम से लगे हुए हैं, जो लगे हुए हैं आज तक एक दिन भी प्राणायाम योगा नहीं छोड़ा। भस्त्रिका छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल अब देखो लगे हुए 5 हैं। भाइयों में से ये 2 भाई बच गए, और उन 3 का क्या हाल है? एक तो व्हीलचेयर पर है। व्हीलचेयर पे है बाबा जी, और एक वो भी योगा करके ठीक है बाबा जी। अच्छा, वो घर पे है। अब इनको भी ठीक करना है। जी बाबा इसको जी। सारा थेरापी और करा देंगे। उसको हम लोग जबरदस्ती लेके आए बाबा जी उसको, कि नहीं चलो वहीं पे चलो, वहीं से ठीक होना है आपको। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत मैंने ऐसा प्रॉब्लम हो गया था हमें बाबा जी कि मैं जब सोता था तो हमें कोई टच भी कर देने से मैंने इतना बहुत दर्द? मुश्किल हो जाता था बाबा जी। टच करने से भी टच करने से बाबा जी करंट जैसा लगता है। और डॉक्टर हमें बोल दिया था कि आप चल नहीं पाओगे, और मैंने धीरे धीरे कुबड़ा हो जाओगे आप। तो ये लास्ट में मैं बाबा जी deformation होता है सब चीज अंदर छोड़ के बाबा जी मैं स्टार्ट कर दिया योगा। आज योगा से मस्त हूँ बाबा जी। जिमिंग भी करता हूँ बाबा जी। अंदर। और दवाई क्या क्या लिया था? दवाई तो नहीं, खाली योगा से मैं ठीक किया बाबा जी। खाली योगा से? जी जी। 2 घंटा सुबह करता था बाबा जी, 1.5 घंटा शाम को करता था बाबा और जी। तूने क्या क्या दवाई लिया? हाँ, ये पतंजलि का औषध चलाते हैं, फिर भी जरूरत नहीं पड़ा। चिकित्सालय दिए थे आप, उसी टाइम से चिकित्सालय चला रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, लेकिन दवा नहीं लेता हूँ अपना। वैसे ही ठीक हो गया है? ये है योग की ताकत है। अब ये बाबा हमारा है? फागुराव ये फागुराव तो बच गया, नहीं तो पहले ही दिन आया था तो मैंने सोचा ये तो अब लास्ट सोच लिया था मैंने कि अब मेरे लिए दुनिया में कहीं दवा नहीं है। और इसका जब आया था ना, तो इसको मैं देखा ये बूढ़ा मरता मरता मेरे सिर ना पड़ जाए। लेकिन मैं ऐसे तो मजाक बोल रहा हूँ, मैं लोगों को विश्वास देता हूँ, और ये तो है बच गया बाबा। नया जीवन मिला मेरे को, नया जीवन मिला। ये उंगली देखने की इच्छा नहीं होती थी, काला जी ऐसा काला हो गया था। अंगुली देखने की इतना, हाँ तो माइक जैसा काला। ये ठीक हो गया। मैं हाथ पैर पूरे इसके उधड़ गए थे पूरे। ये चमड़ी नहीं थी मेरे को, ये चमड़ी पूरी काली। पहले मैं गोरा था,
पर जो काला हुआ तो ये पूरा काला हो गया था। क्या करूं, अभी भी थोड़ा डस्ट अब ऐसे हालात हो गए। अब मेरे को जीवन मिला है, बाबा के चरणों में आया, मेरे को जीवन मिल गया है। अब चलो जा मैं उधर। हमेशा कपाल भाती अनुलोम विलोम करके मैं अपना ये निभाते रहूंगा और हाँ। मेरा जीवन जीऊंगा मैं। हाँ, अच्छा जीवन जिएगा। चल। बाबा ने ही मेरे को दवाई लिख के दी थी खुद ने, और अभी भी लिख के देंगे वही मेरे को। ये गांव के लोग ना आधे तो मुझे देख के ही ठीक हो जाते हैं, शहर वालों को ठीक करने में तकलीफ होती है। शहर वाले 100 तरह से दिमाग लगाएंगे, बाबा बता तो रहे ठीक होगा कि नहीं होगा। मंडूकासन, शशकासन। हाँ वाणी जबलपुर से आई हूँ, जी। स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी करती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी 2004 में, तो स्पाइनल, घुटना, हाथ, सिर सब MRI हुआ, सिटी स्कैनिंग हुआ। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया और कहा 3-4 दिन बाद सिस्टर से, वो भी मैट्रन है, बोले इनकी जो इच्छा है पूरी कर दो, अब ये नहीं बचेंगे। हाँ, मरेगी। हाँ, तो मैं गुरुजी मैंने इंदौर में आपका टीवी में एक प्रोग्राम सुना था। हाँ। तो मुझे लगा कि ये तो मतलब मरना तो है, चलो योग करके मर जाते। नहीं गुरुजी, डॉक्टर ने कहा तो मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है हरिद्वार। तो हाँ। मैं यहाँ मेरी कंडीशन ऐसी थी गुरुजी कि सिर, हाथ, पैर, घुटना सब एक्सीडेंट में चला गया, नाक से। ये कब की बात है? 2006 की गुरुजी। तो तब आई थी तुम? तो मैं योग करती रही गुरुजी टीवी में देखकर। हाँ। और 2010 में मेरी सिस्टर को कैंसर हो गया, तो मैं लेकर हरिद्वार आई। डॉक्टर ने उसको भी कह दिया कि आप जाओ, जो 2-3 लाख लग गया गुरुजी, और उसको प्लेन से लाने में दिक्कत हो रही थी, तो ट्रेन से लाए तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई उसकी। फिर ऑपरेशन हुआ, बोले कि अब इसको मत ले जाओ, पैसा बर्बाद होगा। मैंने बोला हरिद्वार में गंगा जी हैं, मैं वहाँ बहा दूंगी, अगर ठीक नहीं होंगे तो। मैं लेकर आई गुरुजी, और आपके यहाँ पर 3-4 दिन उस बिटिया को रखा, और अनमेरिड थी लड़की। तो डॉक्टर बोल रहा था अरे क्यों परेशान हो रही, इसके आगे पीछे कोई नहीं। मैंने बोला मेरा बेटी भी यही है और बहन भी यही है। गुरुजी 1 हफ्ते में हम उसका घाव ठीक हो गया, जो भर नहीं रहा था। लेकिन ये ना, ये इसमें आत्मबल भी बहुत काम करता है। गुरुजी मैं बोल रहे थे चल अब हॉस्पिटल के कि अरे आप तो योग करके बचते रहते हो, बोलते हो कि दवाई नहीं खाएंगे, अंग्रेजी दवाई नहीं खाएंगे, भर्ती नहीं होंगे, पैसा बचाने के लिए करते हो। इतनी सिटी स्कैनिंग करा, इसमें ये आया, आप बताना ठीक हो। हॉस्पिटल में क्या करती हो? मैं BE की पोस्ट पे हूँ गुरुजी। चल आगे दे दो, बच गई है तो। प्रणाम गुरुजी। अब ये जो है ना, बड़ी बड़ी चीजें मिट सकती हैं, लेकिन उसके लिए ना कंटिन्यूटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। प्रणाम स्वामी जी, मैं सपना बोल रही हूँ नागपुर से। तो मुझे BP का अभी प्रॉब्लम चालू हो गया था, तो मैंने उस टाइम थोड़ी मुक्तावटी ली थी। बाद में मुझे एकदम कंट्रोल आया, वो भी 2 दिन में ही। तो मैंने मैंने बंद कर दिया, एलोपैथी शुरू ही नहीं की। मैंने कभी लेना ही नहीं है मुझे। तो तो उसके बाद में फिर अभी मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं किया था, तो अभी थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह हुआ तो एकदम 160 वगैरह लग रहा था। फिर मैं तुरंत हरिद्वार आई, और यहाँ पे आके बिल्कुल 1 दिन में ही मेरा BP एकदम नॉर्मल आया। मतलब जैसे 155 था, दूसरे दिन 119 आया, और तीसरे दिन अभी 120 आया, और नीचे का भी 80 आ गया। 80-120 से नॉर्मल आ गया एकदम ही। ये योगग्राम में लगता है कुछ तंत्र मंत्र हो रखा है। और यहाँ वातावरण ऐसा है, इसमें आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाए। बिल्कुल, और मुझे एलोपैथी कभी लेना ही नहीं है, मैंने पहले से ही। अब इसको देना। अब ये मैं कहता हूँ, बिना दवा हमारे जीवन का हमसफर नहीं है, बिना दवा के जी सकते हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बेटा। मेरा नाम माधुरी है। मेरी आई साइड बहुत वीक थी, मुझे दूर का कुछ नहीं दिखाई देता था। मैंने अक्षय दर्पण ने 5 दिन केवल कराया, और सौम में आई ड्रॉप डाला, मेरा चश्मा हट गया। मैं चश्मा लगाती ही नहीं हूँ, मेरा चश्मा रूम में रखा है। ये अब राजी भी घूम रही है ये, कि 5 ही दिन में ये मेरे तो कमाल हो गया। इसको बोलते हैं ना मिरेकल, चमत्कार। ऐसा जरूर सबका नहीं हट जाएगा, कभी सब सोचो, लेकिन बहुत ज़्यादा डेडिकेशन हो। अभी नया चश्मा लगा हो, अभी इसको नया लगा था। ये लॉकडाउन में
ऑनलाइन स्टडी करती थी फ़ोन से। नीट की तैयारी करती थी, उसी में घुसी रहती थी कि नीट क्लियर करना है, वो भी अव्वल दर्जे से करना है, ऊपर वाले नंबर आने चाहिए। अब उसमें नीट में इसकी आंखें बेचारी नाराज हो गई। तब ठीक कर लिया आंखें। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे सर्वाइकल था और डिस्क की प्रॉब्लम थी और बीपी लो रहता था, लो बहुत ज़्यादा था। कभी मेरा नॉर्मल ही नहीं आया आज तक, अब नॉर्मल है। ये लो बीपी भी बड़ा खतरनाक है, बहुत लोगों का मैंने देखा 10-10, 20-20 साल तक चलता रहता है। अब नॉर्मल कर दिया। कहाँ से आई है? दिल्ली से। क्या वैसे करती है? हरियाणा की हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, वो तो हाँ। कद काठी से दिख रही थी, हरियाणा की छोरी है। और हरियाणा के आदमी इतने ठाड़े तगड़े घी दूध खाने पीने वाले, इसी का ही डाउन आ गया था, अब नॉर्मल। नॉर्मल है। ठीक है जी। डिस्क जब भी और सर्वाइकल दोनों सब। दोनों ठीक करना। हाँ जी। और ये ताई तेरी उम्र कितनी है? वो 62 साल की मैं स्वामी जी। 62 साल की। ये ऐसे बच्चों की तरह दौड़ती है। स्वामी जी महाराज, मेरा अर्थराइटिस था, वो भी कम हो गया और वो बचपन से चक्कर आती थी और ये प्राणायाम से सब खत्म हो गया। और इतने मासिक धर्म की 5 साल तक का मासिक धर्म आता था। मैंने DY पाटिल हॉस्पिटल में थोड़ी सी चेक करवाया क्यों आता है। इस साल में मैं योगा करते करते सारा ट्रेन में इधर उधर घूमती हूँ, तकलीफ हो रहा है। करने के बाद उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बीच में निकलना पड़ेगा। मैंने ऐसे सोचा कि हमारे गुरुवर ने इतने प्राण औषध दिया है, हमारे औषध हमारे प्राण ही है। मैं प्राणायाम के करने से मैं ठीक करूँगी, मैं नहीं निकल सकती हूँ करके मेरे बेटे की शादी थी। तो बेटे की शादी करने के बाद मैंने स्त्री रसायन वटी आरोग्य केंद्र की जाके रिपोर्ट दिखा के मैंने चालू किया। 3 साल के बाद मेरा मासिक धर्म क्यों निकल गया, कुछ भी तकलीफ नहीं था। मेनोपॉज में बहुत तकलीफ होती है। और स्वामी जी महाराज, इतने मेरा नया जीवन मिल गया योग प्राणायाम से। मेरा आहार भी मेरा औषध है, मेरा प्राण ही मेरा औषध है, मेरा गुरुवर भी की वाणी भी मेरे औषध है। ये है, लगी रहती है, प्रचार करती है सब। मेरे गुरुवर योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और अच्छा मर्यादा भैया, पुरुषोत्तम प्रभु राम है। ओम ओम प्रणाम स्वामी जी, तुम्हारे चरणों में मेरा जीवन समर्पित है। ये महाराष्ट्र में पूरी सब ताई को जानते हैं, सब महाराष्ट्र में घूमती है। प्रणाम सर। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अशोक देसाई, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और हाइपरटेंशन और पॉलीसाइथीमिया से ग्रसित था। पर यहाँ आके मुझे 5 दिन में ही ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल हो गया और कोई मेडिकेशन पे नहीं हूँ अभी मैं। और मैं सबको एक ही संदेश देना चाहूँगा कि योगा और प्राणायाम जरूर अपनी दिनचर्या में अपनाएं। क्या बात है। डॉक्टर साहब हमारे ना बहुत सात्विक है, पति पत्नी दोनों योग करते हैं। पहले कम करते थे डॉक्टर साहब, जब चक्कर में पड़ गए, ये जब खून ज़्यादा बढ़ने लगा, बोले भाई अब ये ज़िंदगी भर दवाई तो फिर इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने पूरा अडोप्ट कर लिया। ओम स्वामी जी। मेरा नाम मीरा है, मैं दतिया MP से हूँ। चलो यही करना। हाँ। मुझे 10 साल से अर्थराइटिस था, गठुआ था, तो मैंने घर पे ही ठीक कर लिया एलोवेरा खा के। और वो एलोवेरा बड़ा ज़बरदस्त, एलोवेरा और गिलोय एलोवेरा का जूस पी रही मैं 10 साल से। मैंने घर पे ही ठीक कर लिया था। अब मेरे को 5 साल से स्पाइन टेढ़ी हो गई, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 30 दिन से हूँ मैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन टेढ़ी हो गई थी। हाँ। टेढ़ी। अब यहाँ पे 35 दिन से हूँ मैं अभी, तो आराम तो है, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन प्रैक्टिस भी कर रही हो ना? हाँ, ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर ने, 10 लाख रुपए लगेंगे, सीधी हो जाएगी। दिल्ली में ऑपरेशन बता दिया। तो बच्चों ने कहा ऑपरेशन करा। मैं इतनी रोती थी, इतनी 4-4 घंटे सुबह उठ के। स्पाइन का ऑपरेशन ना बड़ा डरावना होता है, उसमें पैरालिसिस कुछ भी हो जाता है। बहुत जबरदस्ती की सब घर वालों ने कि ऑपरेशन करा दो इनका। मैंने कि मैं नहीं कराऊंगी, मैं तो एक बार 1 ग्राम पहुंचा दूं मेरे को, उसके बाद ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, नहीं ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं कई बार तो मैं जहर खाने को तैयार हो जाती थी, नदी में कूदने को तैयार हो जाती थी कि मैं तो मर जाऊं तो ठीक है। 4 घंटे इसका दर्द रहता है कि मैं मेरे तो ठीक है ना, दर्द तो अब काफी आराम है। लेकिन ये भी सीधी भी हो जाएगी। अब वो कायरोपैथी वाला होने में ना, हाँ, सीधी होने में थोड़ा समय लगता है। देखो था ना उधर भाई कहाँ हाँ। वो जो रहा, अब वो टेढ़ा था, पूरी टेढ़ी थी ऐसे कमर से। अच्छा हाँ। कितनी टेढ़ी थी, चल के दिखा। अब मेरी 63 साल की उम्र है स्वामी। ऐसे चलता था इधर, ये ऐसे चलता था देख। अब इसकी सीधी होगी कि नहीं हो? कितना समय लगा?
2005 से लगा हुआ है। धीरे अब साल चल, अब ये एकदम से सीधी नहीं होती, अब ऐसे थोड़ी खींच के सीधी करना है। क्यों डॉक्टर साहब, ये तो ऑर्थोपेडिक साथ में बैठे। हाँ। ये तो उष्ट्रासन कराते हैं, चक्रासन कराते हैं, तो पीछे दे दो। ये सब चीजें करनी तो पड़ेगी। उष्ट्रासन, स्वामी जी, वो चक्रासन, मर्कटासन, भुजंगासन। जेनेटिक बीपी था, मैं टेलिस्ट्रॉन गोली खाता था, 160/98 पे स्टेबल था, वो उससे न बढ़ता था न कम होता था। और मैंने कल 160/98 से नीचे नहीं आता था? नहीं आता था। अभी मैंने कल बीपी नापाया, 110/70 आया। 110/70 जी, जो कभी नीचे नहीं आ रहा था। कभी नीचे नहीं आ रहा था, वो गोली कोई प्रभाव ही नहीं कर रही थी, ऐसा लगता था। वो गोलियां भी शरीर के साथ एडजस्ट हो जाती है, उनका भी प्रभाव खत्म हो जाता है। चलो चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ चलो जी बाबा। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं हरियाणा से राजेंद्र बोल रहा हूँ। के ठीक कर लिया? बीपी यहाँ आने से 5 दिन में ही ठीक हो गया बिल्कुल। बीपी 180। हाँ 180। चलो बहुत बढ़िया। और अब ये बुढ़ापे में ना, नहीं तो बीमारी बड़ी परेशान करे। अब प्रदूषण की वजह से भादगढ़ से आया हूँ। हाँ। दिल्ली में आता जाता था, प्रदूषण की वजह से वो ठीक नहीं हो रहा है। अस्थमा, सांस, हाँ अस्थमा है। वो भी लंग बस्ती, स्वासारी गोल्ड लगातार लेते रहिए, फेफड़े भी नए हो जाएंगे। अच्छा। नए हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, बाल नए हो या ना, फेफड़े नए मैं कर दूंगा। उसको अगली बेटी को देना। स्वामी जी 15 साल से अर्थराइटिस था, बहुत भयंकर था। ऐसे कोई टच करता तब भी बहुत दर्द होता था मेरे, बहुत रोती थी, बहुत सब जगह दवाई वाई सब खाया लेकिन आराम नहीं मिला। फिर आपके प्राणायाम किया मैंने, अभी मेरे आराम है। ये हाथ तो 2 साल से बिल्कुल नहीं उठ रहा था, घर से प्राणायाम कर रही थी, लेकिन इधर आके ये बस्ती वो दिया ना, कट्टी बस्ती पोटली मसाज, तो उससे ये बिल्कुल खुल गया स्वामी जी। ये देखो अभी कल से हाथ दिखाती, फिर देखे समझे हाथ खुल गया। हाथ नहीं खुल रहा है। दिल्ली में RR हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज, इंजेक्शन भी लग रहे थे बार बार, नहीं खुल रहा था ये। और हीमोग्लोबिन भी नहीं बढ़ रहा, 10 साल से 8 ही हो रहा था, अभी 14 आया है कल। ये सिर्फ प्राणायाम से, अभी दवाई तो शुरू नहीं किया। लो प्राणायाम से कर दवाई दिया तो काम। लिया ही नहीं, बस सिर्फ प्राणायाम से यहाँ का खाना और ये काढ़ा वगैरह। चलो आगे देना। काढ़ा भी दवाई है, उसको तो दवाई नहीं मानते। ओम स्वामी जी। हाँ, मैं वो भी अखिल दवाई। अग्रवाल दिल्ली से हूँ जी मेरे भाई। अप्रैल में कोरोना हुआ था तो काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी, वो तो ठीक हो गया, पर उसके बाद से बीपी बार बार शूट होने लग गया। तो मेरी वाइफ है, पिछले 10 साल से आपको फॉलो करिए, तो उसने प्रेरित किया कि एक बार योगग्राम होके आओ। तो यहाँ से आए 4 दिन हो गए, बीपी बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो पत्नी की बात हमेशा मानना। स्वामी जी प्रणाम। मैं महाराष्ट्र भंडारा से बोल रही हूँ, मनीषा जी। जी। मेरे को आर्थराइटिस था और थायराइड था, तो मैं 2006 से आपको फॉलो कर रही थी। 2006 में आपका नागपुर में ये हुआ था प्रोग्राम, वहाँ मैंने अटेंड किया था। और 2010 से कंटिन्यू मैं योगा करती हूँ, और तब से मेरा थायराइड बहुत बड़ा हुआ था, तो कम होते होते अभी बहुत कम हो गया। और बीच में मेरे को मिर्गी सीजर के झटके आके एक्सीडेंट हो गया था 2 बार। तो डॉक्टर ने मुझे, न्यूरो सर्जन ने 2 साल के लिए गोली लेने बोली थी। हाँ। तो वो भी मेरी छूट गई प्राणायाम से। ओम प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। मैं राकेश कुमार अयोध्या से आया हूँ। मेरा 16 में पार्ट्स स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था रीढ़ का, बहुत परेशान था। शुगर भी है, बीपी भी है, लेकिन आपके योगासन प्राणायाम से और बीपी किट और जो मधु का शून्य देते हैं उससे बहुत लाभ हुआ। अब काफ़ी आराम में, एकदम नॉर्मल चल रहा है, सामान्य जीवन जी रहा हूँ। बीपी, शुगर, कमर। बाबा जी खून की उल्टियाँ होती थी, डायरेक्शन हो गया था, उसके बाद कमजोरी आ गई थी। लेकिन आपका जो पहले बार अयोध्या में कार्यक्रम हुआ था, योग शिविर लगा था, उससे प्रेरणा मिली, हमने प्राणायाम शुरू किया। प्राणायाम से काफी लाभ हुआ। उल्टी होती थी? जी जी, असल में किसी ने कोई ड्रग दे दिया था, तो उससे अंदर घाव हो गया। घाव हो गया। जी जी जी, अब योग से सारे घाव भी भर लिए। जी, घाव भर गया। ईशब भूसी बराबर सेवन किया। हाँ। आपको प्राणायाम से बहुत लाभ हुआ। बयान पहले करता था, प्राणायाम से बहुत लाभ हुआ। तो योग भगावे रोग में दररोज एबीपी अस्मिता ऊपर मारे साथे योग करजो ना। बधी प्रेरणा पामीने તમે યોગ કરશો તો પછી કોઈ રોગ તમને નડશે નહીં। રાત્રે 8:30 વાગે હું તો
બોલીશમાં મોટો ખુલાસો સોદાગર કોણ?